الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس وإذا استنصحك فانصح له رواہ بخاری و مسلم۔ سلسلہ احادیث کے دروس آپ بھائی سماعت فرما رہے ہیں۔ آج یہ چھٹی حدیث مبارکہ ہے۔ دین اسلام کا جو ماخذ ہے وہ صرف اللہ کی کلام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ ان دونوں چیزوں سے دینی رہنمائی ہم حاصل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننا، یاد کرنا، ان پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صرف عبادات کا ہی حکم نہیں دیا ہے کہ عبادات ہی صرف کرے، معاملات کی تعلیم بھی دی ہے اور معاشرے کے اندر رہنے سہنے کے طریقے سلیقے بھی بتلائے ہیں۔ معاشرے کے اندر اگر ان چیزوں پر عمل کیا جائے تو امن و سلامتی پیدا ہوتی ہے، نفرتیں، کدورتیں، حسد، بغض، تعصبات جو ہیں یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں، محبتیں، راحتیں اور سکون اور سلامتیاں ملتی ہیں۔ یہ 6 باتیں جو ہیں اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت دیتے ہی نہیں، اگر دیتے بھی ہیں تو ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ دیکھیں، نماز میں بھی کوئی بھی مسئلہ ہو، قرآن مجید سے مکمل طور پر ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ مدد نہیں لی جائے گی۔ نماز میں بھی دیکھیں، آپ قیام میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آگے تلاوت بھی کرتے ہیں اکیلے ہوں تو، ورنہ امام کی سماعت کرتے ہیں تلاوت۔ باقی جتنا بھی نماز کا حصہ اس میں احادیث نبوی کی تلاوت ہوتی ہے۔ اللہم باعث بینی سبحانک اللہم و بحمدک، رکوع میں، سجود میں، قومے میں، تشہد میں، درود شریف اور اس کے بعد کی دعائیں، یہ ساری کی ساری احادیث ہیں۔ تو نماز میں، قیام میں قرآن پاک کی تلاوت، باقی ساری نماز میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہم کرتے ہیں۔ اس قدر یہ ضروری ہے، کوئی مسئلہ جو ہے مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ساتھ نہیں ملائیں گے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی جماعت میں سب سے زیادہ احادیث رسول کا علم رکھنے والے تھے۔ کم و بیش 5,500 احادیث کی روایات جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، یقول حق المسلم علی المسلم خمس، کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ اس حدیث میں 5 کا ذکر ہے، دوسری حدیث میں 6 کا ذکر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ مسلمان کلمہ گو
दूसरे मुसलमान पर 5 हक रखता है। पहला हक ये है रद्दुस्सलाम, सलाम कहना, एक दूसरे से सलाम कहना। जिस तरह हर कौम के अंदर ये बात है, ये तकिया कलाम मुलाकात के तरीक़ाकार है। हिंदू नमस्ते नमस्ते कहते हैं, अंग्रेज कहते हैं, वो क्या कहते हैं, हेलो हेलो कहते हैं, या टू मॉर्निंग कहते हैं। इस तरह हर मज़हब में अल्फाज हैं इस तरह के। तो हमें अल्लाह ताला ने जो कलिमात बतलाए हैं वो हैं अस्सलामु अलैकुम। सलाम जो है ये एक दुआ है, ये बहुत बड़ी दुआ है। सलाम अल्लाह का नाम भी है। सलाम का मतलब है मेरी तरफ से तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ है, मेरी तरफ से तेरे लिए दुआ है कि अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे, बीमारियों से बचा कर रखे, फितना फसाद से बचा कर रखे, टेंशनों से बचा कर रखे। सलामती में बेशुमार खैर आ जाती है। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये दुआ है अस्सलामु अलैकुम, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमतें बरसती रहे, व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह की रहमतों का नज़ूल भी हो और उसकी बरकतों का नज़ूल भी हो। कितनी बड़ी ये जामे 3 दुआएं हैं, और 3 ये कलिमात कहने से 30 नेकियां भी मिलती हैं। अल्लाह अकबर। ये पहला हक है, जिसको पहचानते हैं, जिसको नहीं पहचानते, बिला तफरीक हर एक को अस्सलामु अलैकुम कहना, ये मुआशरती में हक है हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर। वह इयादतुल मरीज, दूसरा हक ये है कि जब कोई बीमार हो जाए तो उसकी तीमारदारी करना, उसकी खैर व आफियत तलब करना, बीमार पुरसी करना। ये मुआशरे के अंदर मोहब्बत बांटने वाले अमल है। जब बीमार को आप उसकी खैरियत के लिए जाएंगे तो बीमार जो है उसके दिल से आपके लिए दुआएं निकलेंगी, हमदर्दी के जज्बात पैदा होंगे। तो दूसरी हदीस में है कि जो मरीज़ की याद करने के लिए जाता है वो गोया कि जन्नत के रास्ते पे चल रहा होता है। बल्कि एक हदीस में है जिसने किसी बीमार की याद सुबह के वक़्त की तो शाम तक 70,000 फरिश्ता उसके लिए दुआ करता है, और जो मगरिब के टाइम, मगरिब के बाद किसी की बीमारदारी करता है उसके लिए 70,000 फरिश्ता मगरिब से लेकर सुबह तक दुआएं करेगा। बेशुमार इसकी फजीलतें हैं। तो बीमार की इयादत करना, उसकी बीमार पुरसी करना, खैर वाफियत पूछना, ये मुआशरती तौर पर हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर ये हक है। वत्तिबाउल जनाइज़, जब कोई मुसलमान फौत हो जाए उसकी नमाज जनाजा में शिरकत करना, नमाज जनाजा जो अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ना, ये भी एक मुसलमान के ऊपर हक है कि फौतशुदा मुसलमान का जनाजा पढ़ा जाए और उसमें उसके लिए अल्लाह ताला से मुआफ़ी की दरख्वास्त की जाए, दुआएं की जाएँ, दर्जात बुलंदी की दुआएं की जाएँ। तो ये बहुत बड़ा हक है। आज जनाजों में हम रख रखाव देखते हैं कि आया था हमारे जनाजों पर, ठीक है वरना रहने दो। अल्लाह की रज़ा के लिए जो आदमी किसी के जनाजे पे जाता है, किसी मुसलमान का जनाजा पढ़ता है, तो 1 क़िराअत का सवाब मिलता है। तदफीन में भी शामिल होता है तो 2 क़िराअत का सवाब। सहाबा पूछते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क़िराअत से क्या मुराद है? आपने फरमाया ओहद पहाड़ के बराबर अल्लाह अजर व सवाब अता फरमाते हैं किसी मुसलमान की नमाज जनाजा में शरीक होने से। ये तीसरा हक है मुआशरती तौर पर एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर अल्लाह की रज़ा के लिए किसी की नमाज जनाजा में शरीक होना। व इजाबतुद दावा, चौथा हक ये है कि अल्लाह अकबर, दावत कबूल करना। कोई आपको दावत देता है, खाने की दावत, चाहे वो खाने में दाल खिला दे, आलू पकाकर खिला दे, चाय पिला दे, जिसी उसको अल्लाह ताला ने तौफीक देती है, हिम्मत ताकत है, तो उसकी दावत को कबूल करना, वो बिला तफरीक इस्लाम की बुनियाद पर। ये नहीं कि मटन होगा तो आएंगे वरना नहीं आएंगे, या बीफ होगा तो आएंगे नहीं। जो भी दावत में मिलता है उसे कबूल करना चाहिए, और गरीब आदमी की दावत को भी कबूल करें और अमीर की दावत को भी कबूल करें। ये मुसलमान के ऊपर चौथा हक है मुआशरती तौर पर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिस दावत में, जिस वलीमे में खासकर आम मुसलमानों को ना बुलाया जाए, उन्हें दावत ना दी जाए, तो उसमें
وہ वलीमा जो है, वो दावत जो है अल्लाह की रहमतों से खाली है, यानी गुरबा व मसाकीन को भी दावत में शामिल किया जाए ताकि मुआशरती तौर पर तुम्हारे आपस के अंदर ताल्लुकात मजबूत हों, मोहब्बतें बढ़े, नफरतें ख़त्म हों। व तशमीतुल आतिस, 5वें नंबर पर बाद फरमाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब तुम्हें छींक आए, किसी की छींक की आवाज़ आप सुनते हैं तो वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, सुनने वाला क्या कहेगा यरहमकल्लाह, फिर वो जवाब देगा यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम, यरहमकल्लाह, अल्लाह तुझ पर रहमत फरमाए, यहदीकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें हदायत नसीब फरमाए, तुम्हारे मामलात को अल्लाह दुरुस्त फरमा दे। तो ये भी एक अमल जो है बड़ा अजीम अमल है। किसी को छींक आ जाए तो नफरत नहीं करना चाहिए, ये हर इंसान को फितरतन ये मामला होता है। तो इसके आवाज़ सुनकर जो है अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा जिसको छींक आई है सुनने वाला, यरहमकल्लाह कहेगा, जवाब में फिर वो जिसको छींक आई वो कहेगा यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम। छठा हक है इस हदीस में जो बयान हुआ है, व इज़स्तनसहका फंसह लहू, जब तुम्हारा मुसलमान भाई तुमसे नसीहत तलब करे उसे अच्छा मशवरा दो। बाद अब हम आपस में एक दूसरे से मशवरा लेते हैं, नसीहत तलब करते हैं, तो आप अपने इल्म, अपने शऊर के मुताबिक जो है, अक्लमंदी के मुताबिक उसको अच्छा मशवरा दो, धोखा ना दो। मशवरा देना भी अमानत है। वन्नुस्हु लिकुल्लि मुस्लिमिन, हर मुसलमान की खैर खाही, हर मुसलमान से हमदर्दी, किसी को दुख तकलीफ नहीं पहुंचाना बल्कि उसका भला करना है। आपके मशवरे से उसका भला हो जाता है तो यकीनन आपके लिए बहुत बड़ा अजर होगा। कर भला हो भला, भले का भला, किसी का नुकसान ना करें, हर एक को नुकसान से बचाने की कोशिश करें और हर एक को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें और हर एक के लिए आसानियों वाला मामला करें। ये थी हदीस पाक जिसमें 6 बातों का आपने जिक्र की सुना है। रद्दुस्सलाम, सलाम को आम कहें, अफ़शुस्सलाम व अतइमुत्ताम, सलाम को आम करें, व इयादतुल मरीज़, बीमार की इयादत करें, व इत्तिबाउल जनाइज़, वो मुसलमान फौत हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा में शरीक हूँ, व इजाबतुद दाअवा, वो दावत दे, दावत तमाम तो उसको कबूल किया जाए, व तशमीतुल आतिस, जब किसी को छींक आए तो उसका जवाब दिया जाए, व इज़स्तनसहका फंसह लहू, जब कोई नसीहत तलब करे तो उसको अच्छा मशवरा दिया जाए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला जो सुना है सुना, अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।